Good morning to all my students. Welcome back to Creative Government E-Learning classes. Today we are going to discuss about the plant kingdom, chapter 3rd. So, I told you when we talk about the plant kingdom, then plant kingdom are divided into algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. And angiosperm is also further divided into two kinds of category: monocotyledonous plants and dicotyledonous plant. In last video, we discussed already about the algae, what is the characteristic of algae habitat, and how algae reproduce, the reproduction of organ of algae, and how algae reproduce asexually. So today we are going to discuss about the bryophytes. So bryophyte. When we talk about the bryophytes, all the bryophytes are more developed comparison to the algae. It means जो bryophytes हैं ये ज़्यादा develop होते हैं comparison to आपके algae से, because in bryophytes some erect portion is also showing. That's why bryophytes is more developed comparison to the algae. So all the bryophytes are growing on the dark and shady damp places. And when we talk about the bryophyte, then you see here the body of bryophytes is thalloid. It means mostly the body of bryophytes are thalloid, not differentiated through root, stem and leaves. That's why you can say the body of bryophytes is thalloid. And when we talk about the asexual reproduction in bryophyte, then asexual reproduction is performed by the vegetative reproduction and fragmentation, and also performed by the male and female gametes. The male gamete is called antheridia and female gamete is called archegonium. Antheridium produce are kinds of spore that's called anthrozoites, and while archegonium produce the egg cell which is fused inside the water body and produce a zygote, and zygote not undergoing the reductional division in and you can say the meiosis. The zygote form a multicellular structure, and after that form a multicellular sporophyte, and inside the sporophytes reductional division is performed. After that the spore is formed and the spore is germinated and form the main plant body. So this is a basic about the bryophytes. When we discuss briefly about the bryophytes, then I told you the body of bryophytes is thalloid. It means जो body है bryophytes की वो कैसी है, thalloid है. ये एक्चुअली में ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है. डैम्प और सेडी प्लेसेस में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. कहाँ पे ग्रो करेंगे, डैम्प एंड सेडी प्लेसेस. जो डैम्प एंड सेडी प्लेसेस है वहाँ पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. और ब्रायोफाइट को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट also called amphibian. Bryophytes also called amphibian. It means bryophytes completed our life cycle in terrestrial as well as a water body. It means जो आपके जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर बॉडी की. अगर वाटर बॉडी नहीं होगा तो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म हो पाएगा. दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स इज आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन. एम्फीबियंस के लिए बोलते हैं ऐसे प्लांट और एनिमल जिनको टेरेस्ट्रियल और वाटर बॉडी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं. आफ्टर दैट these plants are reproduce asexually.
ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी प्रोसेस पाई जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक थैलस है इसका ब्रायोफाइट्स का। यहाँ पे एक ऐसे बॉडी दिखाई दे रही है। अब ये जो बॉडी है, यहाँ पे ऐसे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको बोलते हैं हम राइजोइड्स। राइजोइड्स, और इसको क्या बोलेंगे, अगर ये आर्चिगोनियम है तो इसे हम बोलेंगे आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, और इस बॉडी को बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर। अब ब्रायोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एक थैलस में हो सकते हैं और ये क्या डिफरेंट थैलस में हो सकते हैं। अगर यहीं पे ये कौन सा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। वहीं पे अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिमिलरली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। ऐसी बॉडी या ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। और जो एंथ्रीडियम को बियर करे रहता है जो स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर। सिमिलरली ये नीचे यूनिसेलुलर एज वेल एज, या तो ये राइजोइड्स जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे और कैसे होंगे आपके मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इट मींस जो राइजोइड्स है दे वर्क एज अ रूट। जैसे हायर प्लांट्स पे जो राइजोइड जो रूट होती है वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सिमिलरली इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने क्या बोला, आपका एंथ्रीडियम, और जो इसको बियर किए रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियोफोर। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में, तो एंथ्रीडियम से क्या प्रोड्यूस होता है, एंथ्रोजोइड्स। यानी कि एंथ्रोजोइड्स जो है वो किससे प्रोड्यूस होंगे, आपके एंथ्रीडियम से। और जो आर्चिगोनियम है इससे क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी एग सेल। अब एग सेल और एंथ्रोजोइड्स दोनों वाटर बॉडी में क्या कर दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे। मैंने अभी बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम एम्फीबियन प्लांट्स बोलते हैं, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड इनसाइड द वाटर बॉडी। दैट सो वाटर इज important for the complete life cycle for the bryophyte। अब जैसे एंथ्रोजोइड्स और एग सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। अब जो जाइगोट है ये जाइगोट डायरेक्टली रिडक्शन एंड डिवीजन में नहीं जाएगा। जाइगोट में क्या होगा, आपका मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट की सेल्स में फर्दर डिवीजन, रिडक्शन और डिवीजन होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर जो है वो क्या है, ग्रो करेंगे फाइनली, और ग्रो करने के बाद प्लांट बॉडी को आपकी फॉर्म करते हैं, न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे इन
ब्रायोफाइट्स में ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं गैमा कप। इसको क्या बोलते हैं? गैमा कप। गैमा कप क्या है? ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। अब इस ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस गैमा कप detach from the main body या main axis and germinate and form a new bryophyte plant body। तो asexual reproduction जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? मेनली गैमा कप के द्वारा, आपका जैमा कप के द्वारा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे? आपको मैंने बताया कि एंथ्रोजोइड्स और एग से फ्यूज करेंगे, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो है वो उसमें डिवीजन होगा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जो है स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिवीजन होगा, उसके अंदर क्या फॉर्म होंगे? स्पोर, और स्पोर जो है वो फाइनली ग्रो करके आपकी न्यू जो है वो प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा। अब इसके बाद when we talk about the economical value of bryophytes, तो जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इकोनॉमिकल वैल्यू है, तो ये जो बेयर रॉक है उसके सक्सेशन में हेल्प करती है। यानी कि ऐसी रॉक जो प्लांटेशन या वेजिटेशन के लिए सुटेबल नहीं है, तो उस रॉक को जो ब्रायोफाइट्स हैं वो स्मॉल पीसेस में तोड़ के और उसको फॉर वेजिटेशन के लिए, प्लांट ग्रो करने के लिए क्या बनाते हैं? सुटेबल बनाते हैं। दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इसकी? जितने भी प्लांट्स हैं, हर्बेसियस जो एनिमल है उनको ऐसा फूड हेल्प करते हैं, बर्ड्स को ऐसा फूड हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? ब्रायोफाइट्स की क्या है? इकोनॉमिकल वैल्यू। जब और ब्रायोफाइट के बारे में हम डिस्कस करें तो ब्रायोफाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो ब्रायोफाइट को डिवाइड किया गया है लीवर वॉर्ट में। सबसे पहले लीवर वॉर्ट्स में डिवाइड किया गया है, और दूसरे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको किस में डिवाइड किया गया है? आपके मॉसेस। यानी कि जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लीवर वॉर्ट्स, और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कौन सा है? आपका मॉसेस। When we talk about the liver warts, जब हम लीवर वर्ड्स के बारे में बात करें तो जितने भी लीवर वर्ड्स हैं ये भी कहाँ पे? डैम्प और सेडी प्लेस में क्या करेंगे? ग्रो करते हैं। डैम्प और सेडी मॉइस्ट प्लेस पे क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। यानी कि जो ये ग्रो करेंगे लीवर वर्ड्स, ये कहाँ पे ग्रो करेंगे? डैम्प सेडी प्लेसेस पे क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। आफ्टर दैट जो इनकी जो बॉडी होगी, जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? थैलोइड होगी। यानी कि जो प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी? आपकी थैलोइड होगी। थैलोइड यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है लीवर वर्ड्स की वो कैसी होती है? थैलोइड होती है। यानी कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इसके बाद जब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म होता है आपका जैसे गैमा कप से, जैमा कप जिसे हम बोलते हैं इससे परफॉर्म होता है। गैमा कप मैंने बताया था ये क्या है? एक मल्टी सेलुलर बर्ड्स है, मल्टी सेलुलर बर्ड है जो कि मेन प्लांट बॉडी से ये अटैच हो जाती है और फिर ये क्या करती है? न्यू प्लांट बॉडी में क्या करती है? फॉर्म करती है। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलते हैं एंड 3 DM
और वही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब हम बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? आर्चिगोनियम, गोनियम। अब एंथ्रीडियम से क्या प्रोड्यूस होता है? मैंने बोला था एंथ्रोजोइड्स, यानी कि जो एंथ्रीडियम है इससे एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस होगा और इससे क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सेल। और कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा आपका? किसमें? वाटर बॉडी में। आफ्टर दैट जाइगोट फॉर्म होगा और जाइगोट फॉर्म होने के बाद जब जाइगोट बन गया, जाइगोट जो है वो इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता है, ये फॉर्म करता है मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, जिसे हमने क्या बोला था? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। अब जो ये स्पोरोफाइट है उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का, जो कि किस डिवीजन से फॉर्म होंगे? ऑब्वियसली मियोसिस सेल डिवीजन से फॉर्म होंगे, माइटोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन होगा और इसके बाद स्पोर फॉर्म होंगे और ये स्पोर क्या करते हैं? न्यू प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका मार्गेनचिया। मार्गेनचिया जो है एक लीवर बॉड्स को बिलोंग करता है, जो कि क्या है? आपका एक टाइप का ब्रायोफाइट। अब इसके बाद जब हम मॉसिस की बात करें तो जितने भी मॉसिस हैं, मॉसिस भी कहाँ पे ग्रो करते हैं? आपके जो भी सेल, डैम, मोइस्ट और जो सेडी प्लेसेस हैं, सेडी प्लेसेस में जितने भी मॉसिस हैं ये क्या करेंगे? ग्रो करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी मॉसिस हैं इनकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू, और ये क्या होते हैं? सॉइल ब्लेंडर है, सॉइल ब्लेंडर। और मेडिसिनल पर्पस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए, मेडिसिन पर्पस के लिए जितने भी आपके मॉसिस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें हम सॉइल ब्लेंडर भी बोलते हैं। After that, the first terrestrial plant was। अब जब हम इसकी बात करें, अब इसकी जो फर्स्ट स्टेज जो स्पोर से डायरेक्टली जनरेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है कि स्पोर से डायरेक्टली जो प्लांट बॉडी जर्मिनेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। इसके बाद इस प्रोटोनीमा से लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका और सभी ब्रायोफाइट्स में बताया कि इसमें होता क्या है कि आपका कैप्सूल फॉर्म होता है सीटा, जो कि स्पोरोफाइट में यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये वाला जो पार्ट है जिसमें लीव्स हैं, राइजोइड्स हैं और मेन एक्सिस बॉडी है, इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, और अपर रीजन को इसमें आपका सीटा और कैप्सूल रीजन है, कैप्सूल, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। ये क्या है? लीव्स। और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ब्रायोफाइट्स में उसको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे फ्यूजन हुआ एंथ्रोजोइड्स और एक्सेल का, इसके बाद आपकी जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी मल्टीसेलुलर जो बॉडी फॉर्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल। इस कैप्सूल में
फॉर्मेशन होगा इसका स्पोर का, और जो स्पोर है फाइनली कहाँ पे आएंगे, बाहर आएंगे, और ये स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जब जर्मिनेट करेंगे तो फिर से न्यू जो है प्लांट बॉडी, न्यू ब्रायोफाइट्स प्लांट बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपली ये जो आपका सीटम और कैप्सुलर रीजन है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, और जो आपका लीव्स मेन एक्सिस और राइट रीजन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो आपके फ्यूनेरिया, और आपके नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल वो पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एग्जाम्पल में, और पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम ये जो है बेस्ट एग्जाम्पल है आपके इसके, आपके मॉसिस की। तो फाइनली ये अभी जो मैंने डिस्कस किया ये किसके बारे में डिस्कस किया, आपके ब्रायोफाइट्स के बारे में, इनके हैबिट एंड हैबिटेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिकल वैल्यू, एंड आल्सो ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, यूपरवॉट्स, मॉसिस। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एंजियोस्पर्म इन प्लांट्स। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय